पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच हो रही मीटिंग। सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन, पड़ोसी देश के टीवी न्यूज चैनलों के अकाउंट बैन। महेंद्रगढ़ में नकली आधार कार्ड के साथ 14 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, आरोपियों ने कबूली बांग्लादेशी होने की बात। प्रदेश में जगह जगह हो रही अवैध रोहिंग्या की तलाश। जींद के टपरीवास कॉलोनी में दुष्कर्म केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली, इलाज के लिए तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचकुला के मोरनी में जंगल में शरारती तत्वों ने लगाई आग, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, पुलिस ने पंजाब के कुछ युवकों को किया अरेस्ट। पंचकुला के उपराली चौकी गांव में बाघ का जोड़ा दिखने से दहशत, ग्रामीणों ने बाघ के जोड़े का बनाया वीडियो, वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या पर बोले सीएम सैनी, समस्या का समाधान है अधिकारियों की जिम्मेदारी। सीएम ने अधिकारियों को दिए समस्या के निपटने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। देश और प्रदेश की सभी अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महेंद्रगढ़ से, जहां पर अवैध बांग्लादेशी आप ਨੂੰ completely drug free करता जावे in the sense that availability of drugs on the streets would be brought to zero। एक हाई लेवल मीटिंग च सीएम साहब सरदार भगवंत मान जी ने ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ तक ਦੀ ਜਿਹੜੀ एक्शन ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਲ ਕੰਸੀਡਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ on the basis of assessing the availability of drugs in the street today all over the state and the means required to achieve. Punjab Police has a glorious and proud tradition. Time and again Punjab Police has pulled out the state with courage and determination out of severe crises. So we have asked all the field police officers, the SSPs and CPs to lead this campaign personally from the front so that truly Punjab can be made nasha mukt and completely free from drugs. SSPs and CPs have been directed to plan and execute whatever necessary measures are to be taken and fix a target date at own level, but not later than 31st May. The objective is that to cut all the supply lines before 31st May and by which their area would be completely drug free. एक rigorous जड़ा field assessment इस तो बाद किया जाऊगा using intelligence, other sources to determine what is the actual ground reality after 31st May. So उस दे विच जिहड़े भी officers चंगा perform करेंगे, चंगा काम करेंगे, their good work will be rewarded and the officers who give false claims or if their performance is not up to the mark, then accountability and responsibility would be fixed as per the jurisdictions. In a very professional way, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਬੇਸਡ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰੱਗਸ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਥਰੂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਐਂਟਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਅਨਮਾਸਕਡ, ਅਨਵੇਲਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਨ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਇਰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸ਼ਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ FIR ਇਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ
ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਟ ਸਟਰੀਟ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਡਰਗ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ 3 ਐਸਪੈਕਟਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਸਮਗਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ 68F ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟ NDPS ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਐਕਟ has been notified by the Punjab government after its passing by the Punjab Vidhan Sabha and the presidential assent has been received. So we will also examine in consultation with other states ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ even during trial so that ਇੱਕ ਡਿਟਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 64A NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਸੈਡ ਕਿ ਦਿਸ war against drugs is not about numbers. It is not about we are not giving any targets to any officer. It is about qualitatively bringing down the availability of drugs on the streets. So isliye ਜਿਹੜੇ small quantity ਦੇ ਜਿਹੜੇ users ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ compassionate ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ small quantity ਦੇ ਜਿਹੜੇ users ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 64A NDPS ਐਕਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। There is zero tolerance for any use of force against the police. So using utmost restraint whenever a drug smuggler or any other criminal ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਸ ਬੈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ there will be no ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ due to meticulous investigation and monitoring our ANTF chief Mr. Kuldeep Singh is here, Nilab Kishore ji ਹੈਗੇ so Punjab has achieved 90% conviction rate in the NDPS Act in these since March 1st in the war against drugs। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈਗੀ I'll just come back and give you the figures। we have achieved 89 point something out of 836 decided cases 744 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਦੇ since March 1st ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। So more than 10 years imprisonment has been awarded to 144 persons out of the 744 who have been convicted। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਚ 1 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ 4659 FIRs ਅੰਡਰ ਦੀ NDPS ਐਕਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 7414 ਪਰਸਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1877 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨਸ ਬੀਇੰਗ ਅਰੈਸਟਡ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਡੀ 297 kg ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ 10,000 kg ਪੌਪੀ ਹਸਕ 153 kg ओपीएम 95 kg गांजा 21,77,000 ਟੈਬਲੇਟਸ ਕੈਪਸੂਲ ਪਿਲਸ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਡਰਗ ਮਨੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਇੱਕ ਕੈਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 755 ਡਰਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਡਰਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਮੈਂ
4659 ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1264 FIR ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1774 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਉਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 908 targeted and focused CASO operations have been conducted in the state so far, including ਜਿਹੜੇ state wide ਵੱਡੇ operations ਤੇ district level ਦੇ ਜਾਂ range level ਦੇ ਜਿਹੜੇ operations ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ included ਹੈਗੇ। 73 POs, 10 bail jumpers ਤੇ ਇੱਕ parole jumper ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 503 FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ 659 persons have been। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने ड्रग्स को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 31 मई को रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा और इसके अलावा जो काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। महेंद्रगढ़ में 14 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। नकली आधार कार्ड पर नारनौल में ये सभी रह रहे थे। आरोपियों ने बांग्लादेशी होने की बात कबूली है। गुप्तचर विभाग और पुलिस जांच कर रही है। रोहिंग्यों की तलाश की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पुलिस अलर्ट है। प्रदेश पर जगह जगह अवैध रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। गुप्तचर इकाई नारनौल और जिला पुलिस नारनौल की संयुक्त टीम गांव अकोदा स्थित पूजा ईंट भट्ठा में छापेमारी की तो 3 परिवार के कुल 14 बांग्लादेशी पाए गए। पुलिस ने जब इनसे दस्तावेज मांगे तो इनके पास केवल आधार कार्ड था, वो भी पश्चिम बंगाल का नकली आधार कार्ड बना हुआ था। जब पुलिस ने उनसे शक्ति से पूछताछ की तो उन्होंने बांग्लादेशी होने की बात कबूल कर ली। इनमें 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक्शन लिया जा रहा है? ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं ये मिले हैं और किस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? गुप्तचर विभाग और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कल की कार्रवाई के अंदर सीआईडी विभाग और पुलिस ने एक छापेमारी की, जिसके अंदर वो एक ईंट भट्टे के ऊपर गए। वहाँ ईंट भट्टे के ऊपर 2 परिवार रह रहे थे। इन 2 परिवारों के पास जो आधार कार्ड था वो नकली आधार कार्ड था, जो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा था। जब पुलिस ने इसकी जांच की, छानबीन की तो उसमें पता लगा कि ये बांग्लादेशी नागरिक है, ये बांग्लादेश के रहने वाले रोहिंग्या है। तब पुलिस ने उन्हें अपने साथ थाना सदर महेंद्रगढ़ ले आई और उन्होंने मामला दर्ज करके कर रही है। इसके अंदर जो 2 परिवार है, इसके अंदर 4 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और 7 बच्चे हैं। इस तरीके से 14 को पुलिस ने अपने साथ लेकर थाने में आई है और जांच कर रही है। और पुलिस इस पर मामले पर कहना है कि पूरी जांच होने के बाद और भी जो मामला सामने आएगा बताया जाए। जी सुशील, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पता चला कि ये कितने समय से रह रहे थे यहाँ पर? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो परिवार है 2008 से जो 2 परिवार है वो ये रह रहे हैं और 2021 के अंदर ये इस भट्टे के ऊपर आए थे, जबकि 3 वर्ष के लगभग से ज्यादा समय हो गया इस भट्टे के ऊपर मजदूरी का कार्य कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया सुशील इस खबर पर, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो महेंद्रगढ़ में अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार के आदेश पर आज पुलिस कार्रवाई की है कि कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। कितने बांग्लादेशी पकड़े गए और कहां से पकड़े गए? तो बांग्लादेशी के 3 परिवार थे, जिसमें 3 परिवारों में टोटल 14 सदस्य हैं। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। वो मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। जो ईंट भट्टा, पूजा ईंट भट्टा को से पकड़े हैं। तो इनके पास कोई आधार कार्ड वगैरह? इनके पास नकली आधार कार्ड थे, वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के। सच्चाई पूछी तो बांग्लादेश के भी। बांग्लादेश। तो मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गोली लगी है। इलाज के लिए तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेक्टर 62 मलेरना रोड पर यह मुठभेड़ हुई तो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के गोली लगी है। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गोली लगी है। ये जो मुठभेड़ है ये सेक्टर 62 मलेरना रोड पर हुई है।
और इसके बाद जो बदमाश हैं उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल, मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बता दें कि पूरा इस मामले को लेकर के जिस तरीके रात को देर रात सूचना मिली थी और सूचना के बाद जो है वो पुलिस ने मौका देखकर जैसे ही इन लोगों को रुकवाया और तो ये किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास असले भी मौजूद थे और इन्होंने जो है वो पुलिस पार्टी पर जो है वो रुकने की बजाय उनको संतुलन की बजाय उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस के द्वारा करते हुए कई राउंड जो है वो दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिनमें तीनों बदमाशों के पैर में जो है वो पुलिस ने गोली मारी और फिलहाल इनके ऊपर कई आपराधिक मामले जो है वो दर्ज बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। लूट की वारदातों में जो है वो संलिप्त थे और देर रात भी जो है वो किसी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे होते, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जो है वो इसको समय रहते गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इन तीनों का जो है वो उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और इसके पश्चात इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनकी बाकी जो गुत्थियां हैं, जिस तरीके से कौन कौन सी इन्होंने लूट की वारदातों को अंजाम दिया है, ये तमाम बातों को जो है वो पुलिस सुलझा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस सारी जानकारी के लिए। तो बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है पुलिस का मलेरना रोड पर, जिसमें जख्मी बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंचकुला के मोरनी के जंगलों में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया है। आग लगने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। चारों आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक 2 युवक और 2 युवतियों ने जंगल में आग लगाई। ग्रामीणों ने चारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चंडीगढ़ से 2 युवक और 2 युवतियों पर जंगल में आग लगाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि सौरभ और प्रभजोत के साथ आई 2 युवतियों ने जंगल में आग लगाई है। आग इतनी फैल गई कि मोरनी से लेकर पंचकुला तक की करीब 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। आप देख सकते हैं, तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, कितनी भयानक आग है जंगल में दिख रही है। इस खबर पर मेरी सहयोगी तारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तारा ठाकुर, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ अपडेट इस मामले में और कितने समय तक ये आग रही, कितने जो एरिया है उसमें ये आग लगी थी? जी बिल्कुल, देखिए जो ये आग लगने की घटना है, ये कुछ लोग जो है चंडीगढ़ से यहाँ पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि 2 युवक और 2 युवतियां थी और जब यहाँ पर ये घूम रहे थे तो उनके द्वारा जंगल में जो है आग लगाई गई और ग्रामीणों ने जब इसको देखा तो चारों को पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। देखते देखते जो आग है इतनी भयानक हो गई और इतनी फैल गई कि इसमें जो है कई वन्य जीव जो है वो भी मरने की सूचना मिल पा रही है। फिलहाल वन विभाग के द्वारा इसका सर्वे किया जा रहा है कि कौन कौन से जो वन्य जीव हैं वो इसकी चपेट में आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात तक जो है काफी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है और 5 से 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से जो है इस आग पर काबू पाया गया है। अक्सर मोरनी क्षेत्र जो पहाड़ी है वहां पर ट्राई सिटी से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और ऐसे में जो ये शरारती अफसर हैं इन पर काबू पाने के लिए जो है ग्रामीणों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि इन पर जो है नजर रखी जाए, गश्त तेज की जाए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो सके। अगर समय पर जो आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कई घर भी इसकी चपेट में आ सकते थे, कई लोगों को नुकसान हो सकता था। लेकिन जो फिलहाल फायर ब्रिगेड के द्वारा काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और 4 लोगों को इस मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस मामले को लेकर जो है पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर इस सारी जानकारी के लिए। तो मोरनी के जंगलों में शरारती तत्वों ने आग लगाई है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। सोनीपत के धतूरी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्लाईवुड की यह फैक्ट्री थी जिसमें आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। रविवार होने की वजह से फैक्ट्री में छुट्टी थी, जिस वजह से जानी नुकसान से बचाव रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। दमकल कर्मी जब तक आग पर काबू पाते तब तक फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था, राख के ढेर में बदल चुका था। आग से फैक्ट्री मालिक को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है।
तो सोनीपत में प्लाईवुड की फैक्ट्री में ये आग लगी है, जिस पर फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। क्या घटना हुई सर, ये आग कैसे लगी, कुछ कारणों का पता चला? जब मेरे पास फ़ोन आया था, टाइम तो याद नहीं, नाम रवि गोयल है, गुड़ मंडी सोनीपत का। गार्ड साहब का फ़ोन आया, वाला स्लीपर का फ़ोन आया कि आग लगी फैक्ट्री में, और आधे घंटे के अंदर अंदर तो जल के पूरी खराब हो गई। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? प्लाईवुड की फैक्ट्री है, दरवाजे बनाते हैं लकड़ी। तो कितना माल होगा इसमें, कितना नुकसान मानते हो? इस टाइम तो कुछ नहीं बताया जा सकता जी, करोड़ों का माल था। कारण क्या रहे होंगे आग लगने के? हमारी फैक्ट्री में जी देखो, लकड़ी होती है, उसको छीलते हैं, बुरादा होता है फैक्ट्री में, तार हो सकते हैं, किस वजह से रही। पंचकुला उपरली चौकी गांव में बाघ का जोड़ा दिखने से दहशत फैल गई। रात के समय पहाड़ियों पर बाघ का जोड़ा दिखा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने बाघ के जोड़े का वीडियो भी बनाया। बाघ और बाघिन काफी देर तक गांव के आसपास के क्षेत्रों और पहाड़ियों पर टहलते रहे। अचानक बाघों की मौजूदगी से गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है। लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। बच्चों और महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि मौके पर गांव के कई युवक जमा हो गए। पंचकुला के सेक्टर 32 के नजदीक उपरली चौकी गांव पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां पर पहले भी जंगली जानवरों के आगे आने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन बाघ और बाघिन का जोड़ा ये पहली बार देखा गया है। इस घटना के बाद वन विभाग को सूचना दी गई है। अधिकारियों के ने गांव का निरीक्षण कर ग्रामीणों से सतर्क रहने और बाघों को उकसाने या परेशान न करने की अपील की। जींद के टपरीवास कॉलोनी में दुष्कर्म केस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। 5 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शीबा, बीरू और हमीद खान के रूप में आरोपियों की पहचान हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जींद के टपरीवास कॉलोनी में 5 साल की लड़की और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। 21 अप्रैल को महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके पड़ोसियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिससे वो बेहोश हो गई। सुबह होने पर जब उसने देखा तो उसकी बेटी भी उठ नहीं रही थी और ना ही बोल रही थी। बच्ची के मुंह से खून आ रहा था, उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे और लड़की की मौत हो चुकी थी। आरोपियों ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। तो इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कंप्लेंट आई थी, उसमें एक महिला है, उन्होंने अपने साथ गैंगरेप के बारे में शिकायत दी थी और अपनी 5 साल की बच्ची के बारे में कि उसके मर्डर के बारे में शिकायत दी थी। तो इसमें जिला पुलिस ने जांच करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है और बाकी 3 की भी गिरफ्तारी हुई है। उनका मेडिकल वगैरह करा के उनको 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। घटनाक्रम में जैसा मैंने बताया, इसमें पहले मदर जो है, जो माँ है, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है और इसके बाद जो उनकी बच्ची है उनके साथ भी जो है सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद उनके मर्डर की घटना सामने आई है। युवक की जो ओडी में दूध बेच रहा है, ऐसा नहीं है कि दूध बेचना उसकी मजबूरी है। उसने इसके लिए बैंक की नौकरी छोड़ी और अपने पेंशन के चलते पिता के बिजनेस को ज्वाइन किया। युवक अमित भड़ाना फरीदाबाद के मेहताबाद गांव का रहने वाला है। ओडी से पहले वो 8 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन बाइक पर दूध पहुंचाते थे। अब वो 50 लाख की ओडी पर लोगों को दूध की सप्लाई करते हैं। वो रोजाना करीब 120 लीटर दूध फरीदाबाद की कॉलोनियों के घरों में पहुंचाते हैं, जिसके लिए उसे करीब 60 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी पड़ती है। ओके, राइडिंग और ये अपना काम है, काफी पुराना काम है अपना, दूध का काम है। पहले मेरे को वो बाइक राइडिंग का शौक था तो मैंने हार्ले ले ली, फिर मैं हार्लेप लेके गया दूध। हार्लेप जैसे लेके गया, लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो फिर हार्लेप रखी। फिर 1-2 साल बाद अब मैंने ये ऑडी ली, अभी मैंने लास्ट वीक ऑडी ली, फिर अब ऑडी पे रख के ऑडी दूध देता हूँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे फादर साहब है, वो आर्मी से रिटायर्ड है, बड़े भाई है 2 बड़े भाई है,